What if I told you that changing just one habit in your daily routine could help the planet and your peace of mind? Welcome to our today's episode on sustainable living. Hi everyone, this is Mitali and with me I have पलक और आज हम टॉपिक बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है पर इन डिटेल है थोड़ा सा। आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल लिविंग है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। पर उसे हम किक स्टार्ट करने से पहले व्हाई डोंट वी टॉक टू यू दीदी कि what actually is the meaning of sustainable lifestyle, sustainable living, क्योंकि बहुत सारे लोग confuse हो जाते हैं when we use this terminology in our day-to-day life. Answering your question on sustainability or sustainable lifestyle, I would say for individuals, it is making choices that reduce our impact on the planet altogether, because everything we consume from food to fashion has a carbon footprint along with it, which we don't realize. It leaves a footprint in the environment. And this is Yeah. what we are going to discuss in today's episode. And it is a very important topic. Because even small changes can make a big impact. Yeah. मतलब जो ये difference होता है between what we need to survive and what we want, that is very important for an individual to understand. And accordingly, we will talk about the different topics that we want to touch upon in this podcast, related to fashion, beauty, food style, living style in general, not just आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो, different parameters we want to touch upon. Yeah, but if I specifically talk about fashion, आजकल हम हर चीज लेना चाहते हैं। आज ये हमें अच्छा लग गया, ये अच्छा लग गया, आज हम यहाँ घूमने गए हैं, ये भी ले लेते हैं। अरे यहाँ पे ट्रिप पे चले गए, चलो ले लेते हैं। But we really don't understand, coming from a girl's perspective, why do we even need so many clothes? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है। I love clothes. Everywhere I go, I buy clothes. But all of this used to happen when I was in my college life. और उसके बाद COVID happened and obviously shopping वगैरह stop हो गया सब लोगों का. We had to press pause everything and then I started realizing, do I need to shop? Is it necessary? Is it needed? मेरे पास इतने कपड़े हैं. Why don't I just, even there were so many clothes that I only forgot जो मैंने खरीदे थे कि अरे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी पहन सकते हैं. So I stopped reducing what I wanted, what I was buying outside, to figure out कि मेरे पास जो ये कपड़े हैं अपने पास अभी पड़े हुए हैं, उसे कैसे यूज कर सकती हूँ, उसे कैसे रिसाइकिल कर सकती हूँ. I can give it to my friends, I can give it to someone who needs them, I can donate them. In fact, lot of stores, they are offering discounts and special offers if you are giving them clothes which are used. तो मैंने ये सब करना थोड़ा start किया to just avoid this fast fashion trend that we see every now and then. We can't keep up. We see all our celebrities, they come up and they are wearing different clothes and everything. Let me be very honest with all our viewers कि वो ये सब खरीदते नहीं है. It is completely a PR stunt. They are renting it or they are just doing it for the other organizations. But when we see it from the other side, हमें लगता है कि अरे इन्होंने ये खरीदा है, हमें भी खरीदना चाहिए. So let's just clear that out कि जो भी आप चीज देखते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सब खरीदने की जरूरत है. Exactly, and the point which you said कि is it necessary, ये जो question है यही माइंड में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली बीइंग अ गर्ल तो काफी मुश्किल हो जाता है. वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, हमको लगता है ये भी ले ले वो भी ले ले. एंड यू आल्सो टॉक्ड अबाउट फास्ट फैशन, which is an equally relevant topic. And Mitali, I had read somewhere that in making one pair of jeans, 7,000 liters of water is consumed. And बहुत लोगों को ये डेटा पता नहीं होता है. सो आई थिंक जाकि हम सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं, इट कम्स विद माइंडफुलनेस. When we ask ourselves कि क्या ये जरूरी है मेरे लिए लेना, and as you already talked about कि हम कैसे ऐसे डील कर सकते हैं, how can we reduce and so I think that's commendable that आप भी थोड़ा बहुत इसमें initiate कर रहे हैं.
So If you see the shirt that I am wearing right now, इसे मैं हर चीज के साथ स्टाइल करती हूँ. I have styled it with jeans, I have styled it with plazos, I have styled it as my night suit, I have styled it with skirts, shorts, every possible thing in my wardrobe, I will style it with that. And it is very comfortable and it is something that I have bought 5 years back and it's still fine. हाँ, उस टाइम पे आप थोड़ा सा महंगा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो so that you don't have to purchase again and again and again. So that is what I would recommend in this particular section when we are talking about fashion. But if we talk to you, someone who is working from home, I am working from office, I am changing my location, कभी थोड़ी देर घर पे रहती हूँ, कभी थोड़ी देर मैं ऑफिस में रहती हूँ, but you are someone who is staying at home, who is working from home, who is doing everything from home. So what kind of lifestyle आपने अपने घर के हैबिट में डाला हुआ है with respect to sustainable lifestyle? Why don't you tell us about that? Yeah, sure. So as you mentioned, I'm working from home, तो मुझे इतने कपड़ों की नीड नहीं होती है. I don't need any office wear. हाँ, ठीक है, कभी कॉल्स पे जाना होता है, जैसे मैंने अभी ये पहन रखा है, I can easily wear it. And so इससे काफी बचत हो जाती है. But since I'm also a content creator, मैं काफी कुछ परचेज कर लेती हूँ. But there's a like I can always like just take it and wear and return it back. And I also wear clothes I borrow from my sister. So हम भी काफी कपड़े exchange करते हैं आपस में. तो इससे क्या Yeah. होता है कि like there is a like if you buy less, there is less pressure on the environment, there is less deforestation, there is less overproduction. So ये सारे Yeah. जो topics हैं वो काफी related हैं. And I understand like in the era of fast fashion ये बहुत मुश्किल decision हो जाता है not to buy. And in that case मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कुछ अच्छा लगता है और जब मुझे ये भी लगता है कि it's not needed, so I add the product to the cart, but I don't buy it immediately. And Yeah. it keeps lingering there for like 3-4 days, and then मेरा अपना भी mind बन जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए. And I think I'll also take the idea कि as you mentioned कि एक ही top को अलग अलग तरीके से style कर सकते हो, तो वो एक अलग outfit बन जाता है आपके लिए, right? And that is with minimum resource, because यहाँ पे हम minimalism और sustainability की बात कर रहे हैं. So I Yeah. think that's a very good point. Yeah. और अगर हम अपने घर की हैबिट्स की बात करें, आई थिंक इंस्टेड ऑफ, हमारे हर घर में होता है, हमारे घर में अगर कुछ बाहर से जार्स आ गए हैं या कंटेनर्स आ गए हैं, तो यूजुअली इंडियन माइंडसेट इज कि हम उस जार को या जो बॉक्स है उसको साफ करके रख लें एंड वी विल कीप आवर स्टफ इन दैट. वी विल नॉट थ्रो इट एंड बाय न्यू जार्स फ्रॉम द मार्केट. आई थिंक that is something very nice that our ancestors and our mothers specifically we have learned from them, जो हम करते आ रहे हैं. Do you do that at your place? यस डेफिनेटली मैं ये ट्राई करती हूँ कि किचन में मेरा मिनिमम वेस्ट हो. मैं कैसे, क्योंकि आपको संभालनी भी पड़ती है चीजें, एंड यू बाय सच प्रोडक्ट्स ओनली जो कि रिसाइक्लेबल पैकेजिंग में आते हैं, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक्स हो. सो आई थिंक दैट कैन बी वन थिंग, एंड स्टोरिंग इन द जार्स इज ऑफ कोर्स अ गुड ऑप्शन. Yeah, and in fact, I don't know, but कि ऐसा ये common होता है या नहीं, but मेरे घर में तो there is a bag, a polythene bag, जो हमें नहीं use करना चाहिए. But we go to market and all, we get these plastic bags वगैरह जो आते हैं. We have a plastic bag which is full of these plastic bags, so that कुछ भी अगर जरूरत है, इस बैग को use कर लिया. Every house has that. ये हर घर में आपको दिखेगा कि प्लास्टिक. और जब भी आप जैसे कोई बीच में एक जो नो प्लास्टिक का एक चला था, तो उसमें मैं शॉपकीपर्स से मैंने नोटिस किया था दैट दे वर नॉट सेलिंग प्लास्टिक, कि नहीं मैम प्लास्टिक नहीं है, या पेपर बैग्स. Yeah. एंड मैंने मेरे लाइफ में ये चेंज किया कि whenever I go out and I always carry my own tote bag, so that when I go out, कुछ भी मुझे परचेज करना हो तो मुझे अलग से एक शॉपिंग बैग कैरी नहीं करना है. वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो पेपर का हो सकता है. तो इट्स ऑल अबाउट सेविंग रिसोर्सेज अराउंड अस. That is a very good idea कि जब आप जा रहे हो आपके पास ऑलरेडी अपना बैग है, you don't have dependency on the vendor कि वो आपको इतने सारे पैकेट्स बना के देगा. It gets too much for you also to handle. तो अगर हम उसे देखें, थोड़ा सा मेहनत लगता है कि आपको अपने घर से लेके अपने शॉप तक लेके जाना है कहीं पे, but when you see the broader picture, it's more convenient for you also. आपका अपना एक बैग है, उसमें सारा सामान है आपका.
एंड मैं घर पे ही रहती हूँ जनरली, एंड आई ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट, बिग बास्केट। तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, स्पेशली आई थिंक ज़ेप्टो पे, दैट आई डोंट नीड अ पेपर बैग करके। या एंड या इफ या नीड अ पेपर बैग बिकॉज़ आप मुझे घर पे डिलीवर कर रहे हो, ठीक है? एंड स्पेशली जब 3-4 चीज़ें हैं, उसके लिए मैं अलग से पेपर बैग क्यों आपसे करूँ? तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन दैट दे आर प्रोवाइडिंग अस, दैट दे आर प्रोवाइडिंग द बायर्स, दैट इफ यू वांट यू कैन चूज़ नॉट टू बाय द पेपर बैग। या। Yeah, I think, and when we talk, but now that we are talking about food and all those things in the raw form, let's talk about the food habits जो हमारी होती रहती है. And if I talk about those food habits, I want to tell all our viewers a very personal experience that has happened in a very recent phase of my life. मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी. My test reports were very off. My hemoglobin had dropped very low. My thyroid went very high because of that. तो when I spoke to the doctor and I asked him what is the reason कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि I am eating exactly the same thing that I have been eating from past so many years ever since I stepped out of my house, and he said that is exactly what is wrong. कि आपने एक डाइट रखी, आपकी एक हेल्दी डाइट थी जो आप घर पे थी, आप घर का खाना खा रहे थे, आप एक पर्टिकुलर पोर्शन में खाना खा रहे थे, देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू यूज्ड टू ईट दैट फूड, वो सब आपका जो टाइम टेबल है वो सब खराब हो गया, और जो आप कुछ भी खा रहे हो मतलब जस्ट बिकॉज आपका मन कर रहा है, दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू ईट. Eat, go for meals that are plant based, don't go for meals which are meat based. That will help you reduce जो आपका इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी आपको हेल्प करेगा. इट इज मोर पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, इट इज मोर हेल्दी ऑल्सो. पीपल यूजुअली थिंक दैट ईटिंग हेल्दी मीन्स इट इज एक्सपेंसिव फूड, but it is not like that. That is what I have realized in past couple of weeks, that when I used to eat कुछ भी, तब मेरा जो बजट था वो ज्यादा हो जाता था. बट नाउ दैट आई नो दैट आई हैव टू ईट इन अ सर्टेन वे वेयर देयर आर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस ऑन माय डाइट, or even if when I am traveling I am avoiding packet foods, क्योंकि हम खाते हैं हम उसे फेंक देते हैं. टेक अ बॉक्स फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से डब्बा बना के लेके जाइए. आप एक अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप प्लेट या जो छोटी सी कटोरी है, चम्मच, छोटा सा ग्लास आप लेके जाइए, सो दैट यू आर नॉट ईटिंग इन दैट प्लास्टिक वाला खाना. एंड यू ऑल्सो फील दैट योर ओन बर्तन इज देयर, सो इट इज हाइजीनिक ऑल्सो, क्योंकि अपनी चीज हमको हमेशा साफ लगती है चाहे वो जितनी मर्जी गंदी हो. No, no, exactly. So मुझे यहाँ लगता है कि that's a really valid point that you have brought up. But I think it will be challenging for people who heavily rely on non-vegetarian options. You know, like Yeah. there are some people जिनको they want to consume meat, like उनको खाना ही होता है, and it adds to the footprint. So what do you have to say on that? I think in that case, we can't change एक इंसान का completely the whole diet, but हाँ we can always go for the रिड्यूस करने के उस पे जा सकते हैं. अगर हमें डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपका शुगर ज्यादा हो गया है या फिर आपका बीपी ज्यादा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमक खाना बंद कर दें अगले दिन से, बिकॉज योर बॉडी विल रिक्वायर आयोडीन, योर बॉडी रिक्वायर शुगर, ग्लूकोज टू process to function properly. So to all the people who are eating non-veg, I am not recommending or suggesting कि आप कल से सारा बंद कर दो, non-veg बंद कर दो, milk products बंद कर दीजिए. But I am saying is that instead of going on a diet of 7 days of non-veg, go for a diet on maybe 4 days, 5 days. Give Mhm. break to your body also. Yeah, क्योंकि yeah. हर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट द इंटरनल लाइफस्टाइल, इंटरनल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. नो, नो, एग्जैक्टली. सो मुझे ये भी लगता है कि देयर आर सम पीपल हु यू टॉस ओवर द लेफ्ट ओवर फूड, दे जस्ट थ्रो इट अवे. आई थिंक वो नहीं करना चाहिए. अगर आपको नहीं खाना है, देन यू गिव इट टू द एनिमल्स. इफ या इट इज स्टिल फ्रेश, इफ इट इज स्टिल फ्रेश, यू कैन गिव इट टू योर मेड. एंड कोई तो खाएगा. आप एटलीस्ट आप फेंकिए मत यार. उसको जो बनाने में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, यू नो, और जो भी हम मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आते हैं, जब तक उसको हम पूरा प्रिपेयर करके जब तक उसको हम खाते हैं, सो यहाँ पे एक पूरी चेन बनती है. इट्स काइंड ऑफ सप्लाई चेन. एक एनर्जी यहाँ पे पूरी कंज्यूम हो रही होती है. सो आई थिंक एट एवरी पॉइंट, you know, we need to save, and this is how in totality we can make a difference. Yeah, exactly. That is a very good
point actually completely nicely summed up our food and lifestyle related topic that we wanted to touch upon. I have seen you travel a lot. You traveled to Udaipur recently. You are planning to travel somewhere else also, बहुत recently. हाँ. We will get to know about those travel plans through your Instagram. But अगर हमें ट्रैवल और जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसमें अगर हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल डालना हो, अगर हमें उसका एसेंस उसमें डालना हो, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कैसे कर सकते हैं? So I think for that, especially if you are traveling a short distance, तो आप ट्रेन चूज कर सकते हैं ओवर अ फ्लाइट, बिकॉज फ्लाइट में ज़्यादा CO2 emissions के चांसेस रहते हैं. स्पेशली लाइक मैं इस पे ये बात करना चाहूंगी कि जो प्राइवेट जेट्स जिनके पास होते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज एंड बिजनेस टाइकून्स, उनका जो पर प्राइवेट जेट जो एक CO2 emission निकलता है, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, आई हैव नोटेड इट डाउन, दैट अ सिंगल प्राइवेट जेट फ्लाइट कैन प्रोड्यूस around 3.6 tons of CO2. It is according to the study by Nature. Nature is a journal. Yeah. So ये चीज मुझे काफी, लेकिन it was a shock for me कि इतना लोग ना खुद का प्राइवेट जेट लेके निकल रहे हैं. आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उसका क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एज आई मेंशन कि मैं कैसे इससे टैकल करती हूँ, एक कार पूलिंग आप कीजिए whenever we go somewhere. Yeah. Even my husband, like when he travels, because we're talking of क्यों अलग अलग कैब लेके जाना है, आप खुद ही सोचिए. और ठीक है, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ लोगों को कन्वीनियंट नहीं लगता है, दैट्स ओके, बट यू नो एटलीस्ट दिस इज द सिंपलेस्ट वे. कार पूलिंग इज पॉसिबल. और मैं ट्रैवल भी काफी मैंने कम कर दिया है मेरा. मैं तभी बाहर जाती हूँ जब मुझे रिक्वायरमेंट हो. लाइक अगर मुझे कहीं पास में जाना है, आई वोंट टेक माई 2 व्हीलर, आई कैन जस्ट वॉक. मतलब इट्स गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, यू नो. लाइक हर Yeah. छोटे डिस्टेंस के लिए आप स्कूटी My लेके चलते हो. home and my office, they are in a radius of 1 kilometer. So instead of taking Ola, Uber or something, I prefer walking. A Yeah. reason, it helps me clear my mind also. Second, I reach faster than my Ola and Uber because there are 3 signals. तो जब तक वो हर सिग्नल पे रुकेंगे तब तक मैं ऑफिस ही पहुंच जाऊंगी. राइट, ये बहुत ही सही है कि आपका ऑफिस पास में है, तो इससे काफी यू नो यू इनडायरेक्टली आप काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. सो कुडोस टू यू. But yeah, I would recommend that all our viewers who are listening to us, if you are also staying in nearby location, अपने ऑफिस से, so I would also recommend कि आप सब भी walk करके जाइए. Go, and if you are staying far off, as Didi mentioned, you should go for carpooling. You can ask people from your own organization to like, चल यार साथ में चलते हैं, same route पड़ता है. This will help. A, friendly भी होगा, or B, you will impact, you'll have some, you'll be able to make some difference in the environment also. Yes, yes. So Mitali, let's also touch upon digital sustainability. ये टॉपिक थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए मैं ये नहीं कहूंगी न्यू है, लेकिन इतना हम सोचते नहीं इस बारे में. यू नो लाइक दैट दोस्त, मुझे लगता है कि जैसे अपना जीमेल है, दोस्त एक्सेस ईमेल्स लिंगरिंग इन आवर जीमेल एंड वी आर नॉट डिलीटिंग इट, एंड दोस्त एक्सेस irrelevant पिक्चर्स विच वी टेक, जो हमारे फोन का स्पेस पूरा भर रहे हैं और हम उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लेजी. ये काफी है ना, चूज करना पड़ता है व्हाट टू डिलीट व्हाट नॉट टू डिलीट. सो यू नो, नॉट जस्ट decluttering our surroundings, it's also important to declutter your electronics in a way कि आप उसके अंदर जो स्टोरेज है वो भी एक एनर्जी एमिट कर रहा है. You know, when your phone is heavily, you know, पूरा सब भरा हुआ है डेटा वगैरह, उसको आप चार्ज भी करते हैं, आप उसको हटाते भी हैं, कुछ लोग ओवरनाइट चार्ज करने लगा देते हैं. तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको लगता है तो क्या हो गया, बट नहीं, उससे आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा. आप करके देखिए, जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सस्टेनेबिलिटी, आपको कुछ ईमेल्स नहीं इंपॉर्टेंट है, हटा दीजिए. फोटोज नहीं चाहिए, हटा दीजिए. आपको अच्छा भी लगेगा, और ये आपके लिए भी, आपके फोन के लिए, कि आपके गैजेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है. Yeah, that is actually a very good suggestion. In fact, I didn't think about it कि अरे क्या उससे भी impact होता है क्या? But now that you have told me, I will also go and delete my pictures and check my mail कि कुछ जो unnecessary clutter उधर है उसे भी मैं delete कर दूँ. I feel
to sum it up, we can talk about the benefits of reducing the carbon footprint for humans and for the environment. आई थिंक जो हमारे स्मॉल स्टेप्स हैं वो हमें लेते रहना चाहिए. वी शुड नॉट एम फॉर बिग थिंग्स कि अरे हम तो ये कर देंगे, पूरा कार्बन का हम तो इंडिया को एकदम नीचे ला देंगे. इसमें नहीं, आवर स्टेप शुड बी दैट हम कम कर दें अपने लाइफस्टाइल में जो हम ये कार्बन फुटप्रिंट का यूज कर रहे हैं. वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है. तो अगर धीरे 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 हर एक इंसान ऐसा सोचने लगे, इंडिया विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस carbon footprint. It will be more, it will be having a very good lifestyle of each and every individual. So I would recommend ki we should go for that method. We should go for reduce and reuse method instead of going with the current lifestyle that each and every one of us is following. So yeah, and in fact, we should not restrict it to just us, but we should also talk to our friends and families to join us in this journey. क्योंकि पुराने लोगों का तो हम लाइफ जो उनकी थिंकिंग है, मेंटालिटी है, उसे हम एट दिस एज वी कांट चेंज, बट द पीपल हु आर ऑफ आवर एज और kids who are growing up or teenagers who are surrounded around us, we can obviously start telling them. एज यू मेंशन कि बूंद बूंद से सागर भरता है, मुझे अचानक से ऐसे याद आया, कुछ लोग शावर लेते हैं तो पूरा पानी तो आधा तो वेस्ट हो रहा होता है, तो आप नीचे बकेट रख दो, आप शावर लो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बट आप नीचे एक बकेट रख दीजिए और जो पानी थोड़ा थोड़ा बचेगा, इट कैन, अगर आप उसको क्यूमुलेटिवली देखें तो पूरे हफ्ते में आप कितना पानी बचा सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं आई थिंक. एंड बेनिफिट्स टू द एनवायरनमेंट तो बहुत हैं, जैसा कि लाइक लेस प्लास्टिक, फूड, फैशन वेस्ट इज इक्वल टू लेस बर्डन ऑन द लैंडफिल्स एंड द ओशन ऑल टुगेदर, यू नो. एंड मैं यही सजेस्ट करूंगी ऑडियंस को कि यू इंडल्ज इन माइंडफुलनेस, चाहे वो माइंडफुलनेस ईटिंग हो, माइंडफुलनेस बाइंग हो, माइंडफुलनेस लिविंग है, ताकि आप देखिए कि देयर समथिंग नोन एज बायर्स रिमोर्स, कि आपको कुछ आप खरीद लेते हैं, फिर आपको लगता है कि यार शायद नहीं लेती तो ठीक था. सो यू नो, टू अवॉइड दैट, आप थोड़ा, जैसे मिताली ने बोला कि यू क्वेश्चन योरसेल्फ, इज इट नेसेसरी, क्या मुझे ये मेरी लाइफ में चाहिए? Because there are many things which are optional. हमको सब कुछ चाहिए होता है, you know, we as humans we think कि हाँ ये भी ले लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो क्या हो गया, एक और ले लेते हैं. So यहाँ पे एक थोड़ा कंट्रोल आप कीजिए, आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेक कर सकते हैं. I think you have summed up in a very nice way the whole podcast, and I think जो हमारे viewers हैं वो अगर ये देखेंगे, they will feel little motivated and they might also see the areas जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए and how they can contribute in this journey. कि आप अगर अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा चेंज करते हैं हमारा एपिसोड देखने के बाद, या वैसे भी आप ऐसा कुछ करते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. हमें बहुत खुशी होगी दैट इवन यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर बिट. And I would like to end this episode with a statement, because when you live lighter, the world breathes easier. Yeah. So Wow. इसलिए आप गौर कीजिएगा, seeing us, and hope you like the episode.